Our next session is on wellness, leadership and discipline in the armed forces. And our speaker is retired Lieutenant General V.G. Khandare, PVSM, AVSM, SM and former Principal Advisor, Ministry of Defence and former Military Advisor, NSCS. Lieutenant General V.G. Khandare is a highly decorated officer with over 4 decades in the Indian Army, has extensive operational, instructional and UN peacekeeping experience. After retiring in 2018, he served in key national security roles as military advisor at NSCS and as principal advisor at the Ministry of Defence until 2025. He is recognized for his expertise in intelligence, defense diplomacy, capability building and handling complex security and military affairs. Awarded multiple gallantry and distinguished service honors, he continues to contribute through research, writing, training and thought leadership in national security. Currently a distinguished fellow at USI and emeritus faculty at RRU, he mentors youth and advances work in modern warfare, technology integration and national development. Ladies and gentlemen, please welcome our speaker with a round of applause. Retired Lieutenant General V.G. Khandare, sir. And may I also request Mr. Uday Jadhav to please come up and welcome him with a token of our appreciation and gratitude. Requesting everyone to please remain seated. Jai Hind. As I saw, everyone was engrossed in the previous session, and then I saw a lot of people leaving. What thought came to my mind is that everyone wants to be well, but what about discipline? I think there is something which needs to be thought of as a society, as an individual. And the third part of my topic is leadership. So whether you are your own leader, whether you need a leader, and whether that leader is worth it. So all three primary issues are important for individuals as well as nation. Now, whenever you look at a military person or you think of a military person, there are lots of wrong perceptions in society, and I have never understood why. If I ask somebody, say in any town, village, very often I get to hear कि sir, ये military चे लोग आया है, ये military का व्यक्ति है, ये पक्का दारू पीता होगा, ये मटन तो खाता ही होगा, और ये हर रोज एक पैकेट सिगरेट तो पीता ही होगा. ये किसने धारणा बनाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये धारणा बनी और ये धारणा मजबूत होती गई, और ये शायद बॉलीवुड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. बॉलीवुड में मिलिट्री ऑफिसर को एक कार्टून के तौर पे दिखाया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से राष्ट्र सेवा नहीं है, राष्ट्रद्रोह है. और अगर आप ये तीनों जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, इसके बारे में सोचें, हमारे लिए वेलनेस इंडिविजुअली मिलिट्री के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, वी हैव टू बी एट द पीक ऑफ आवर एफिशिएंसी. वी कैन नॉट से कि हम छुट्टी पे हैं. जो नॉर्मली यहाँ पे होता है, सर मेरा ऑफ डे है, ऐसा मिलिट्री में ऑफ डे नहीं होता है. ये भी नहीं बोला जा सकता कि सर मुझे सर दर्द है, किसी और को भेज दीजिए ऑपरेशन में, ऐसा नहीं होता है.
even if I have finished doing an operation and I come back and I am feeling sleepy, but the moment I get an information or an order that there is one more operation which you have to conduct, I will get up and go. I will not possibly have the time to even have a cup of tea. People within the military, despite being at the peak of their health, and health I will talk about mental health, emotional health, and physical health also, but our job demands that we have to be at the peak of our health, always, every time. And how is that ensured? There are certain ways and means in our training which get inculcated. आप लोगों को शायद उसके बारे में या तो ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, या किसी ने जानकारी नहीं दी होगी, बट छोटे छोटे मुद्दे मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग परेड करते हैं, हम लोगों को ड्रिल सिखाया जाता है जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, तो सबको ये बोला जाता है कि बायां पांव पहले बाहर होगा और दाहिना हाथ होगा। क्यों? एज अ टीम all of us will react in the same manner. That is discipline. For hours together, we are standing in Savdhan without flinching an eyelid, without moving a finger. Why? आपको पता है जब जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में हम एम्बुश में लाइंग पोजीशन में हथियार के साथ अलर्ट रहते हैं पूरी रात, चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, जरा सी भी हरकत नहीं होती है। क्यों? अगर आप हरकत करेंगे तो पूरी आपकी टुकड़ी मारी जाएगी। आपको इंतज़ार में रहना पड़ता है, घात में रहना पड़ता है। यहाँ पे आपकी फिजिकल फिटनेस, यहाँ पे आपकी मेंटल फिटनेस, यहाँ पे आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब ज़रूरी है। आपके घर पे आपकी वाइफ बीमार है, आपका बच्चा बीमार है, बट ये अभी आप टास्क कर रहे हैं, इसके लिए आपको इमोशनली स्टेबल होना आवश्यक है। आपको फ्रैक्चर हुआ है, आपको दर्द हो रहा है, आप गोली खाएंगे, दवा खाएंगे और फिर ऑपरेशन में लग जाएंगे। ये मेंटल हेल्थ का लक्षण है। ये मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक सैनिक के फीलिंग से मालूम होना चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए लाखों सैनिक जो यूनिफॉर्म में हैं और लाखों सैनिक जो यूनिफॉर्म से बाहर हैं, वो अभी भी देश के बारे में सोचते हैं और देश के बारे में काम करते हैं। और इसमें अगर हम ये बोलें कि जैसे मैं कई बार अभी सुनता हूँ कि सर 40 साल तक हम काम करेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। कर्नल पाटिल यहाँ बैठे हैं, मेरे से कई साल बड़े हैं। मेरी उम्र अभी 68 होने वाली है, लेकिन हमने तो काम करना बंद नहीं किया देश के लिए। अगर मैं अपने बारे में सोचूंगा तो बात अलग है, लेकिन अगर मैं समाज और देश के बारे में सोचूंगा तो बात अलग है। दोनों दृष्टिकोण अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि जब हम देश के बारे में बोलते हैं कि हम देश को विकसित देखना चाहते हैं 2047 तक, तो आप देश को अगर सुरक्षित नहीं करेंगे तो विकसित भी नहीं देखेंगे। और अगर देश को विकसित और सुरक्षित करना है तो आपको अपनी हेल्थ सबसे बढ़िया रखनी है। नाउ लेट मी इलैबोरेट ऑन दिस। यू नो, लॉट ऑफ पीपल से दैट वी हैव द रिचनेस ऑफ यूथ, वी आर अ वेरी यंग कंट्री। People say that out of 1.4 billion people, 60% people are youth. Very good, excellent. If this youth is not skilled, if this youth is not physically fit, what are we going to do with this youth? We will carry this youth, which is not the way a nation will prosper. Let me come to some small basic things. Why do we put so much of emphasis on physical fitness in the armed forces? You know, there is one small thought. आपने देखा होगा, जब जो भी शायद फौज के एरिया के आसपास रहे होंगे, आपने देखा होगा सुबह सुबह military people are out running. They are carrying huge weights on their back
they are carrying their rifle. Why? You know, there is one more exercise which we call as the fireman's lift, which I have my buddy and I have to carry him on my shoulder with his weapon. If he is injured in war, I must carry him back to safety. I must carry his weapon back. Why? We have an ethos. We will never leave a colleague behind. We will never allow enemy to handle my weapon. My weapon is like my companion. I will never let anyone handle my weapon. And the biggest disgrace that we can inflict on our enemy is to go hit him and get his weapon. That is my trophy of victory. And I will narrate a very small incident here. My battalion carried out a raid across the line of control on the night of 27-28 October. Year was 2000. It was to take revenge because the Pakistani army and the terrorist led by one Ilyas Kashmiri, they had raided one of our other battalion in which they had killed about 10 people, taken one person alive, beheaded him, presented his head to Parvez Musharraf, who was heading that country in February 2000, and he had given 1 lakh rupees. Now our blood was boiling. We said, we will take revenge because that is my dharma. Now to take revenge, I have to be physically so fit. I have to be mentally stable. Emotionally, I have to be stable. This all comes under wellness. Why is it so? When we go to fight a war or when we go for an operation, please don't believe what is given in Bollywood. हम जा रहे हैं गुस्से में गालियां देते हुए, ऐसा नहीं है. When we fight the enemy, we are a very calm mind. Our mind is clear, no clutter. We have only one aim. आप कोई कभी फौजी एरिया में कभी जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे दीवार पे लिखा होता है, एक गोली एक दुश्मन. I have to be so perfect that one round which I fire should hit the head, and that's the end of the enemy. That comes with perfection and congruence of physical health, mental health, emotional stability. Obviously, that comes with training, that comes with discipline, and that comes with the leadership that leads you. So I led my battalion. They had killed 10. We killed 26 Pakistani soldiers. More important, I did not lose any soldier. Much more important, we brought 3 of their weapons, one heavy machine gun, another machine gun, and a Chinese assault rifle. They are displayed prominently in my battalion, and number of people who keep coming to my battalion as soldiers and officers, they get inspired by seeing this. This is leadership. After the operation, our defense minister, Raksha Mantri at that time, an excellent Raksha Mantri, George Fernandes, he came to visit us immediately after the operation, and he wanted to meet me and my team. And he came, the whole lot of people, obviously when the Raksha Mantri is coming, the Chief of Army Staff is there, the Army Commander is there, the Corps Commander is there, Divisional Commander, Brigade Commander, everyone is there. Very politely he told them कि आप मुझे इस टीम के साथ बात करने दीजिए. He came, he put his hand over my shoulder and he said in Marathi, तुम्ही खंडारे मराठी? मतलब हो sir. In very fluent Marathi, he asked me a couple of questions. And the first question was, when we did not give you orders in writing, why did you do this? So I said, sir, my blood was boiling. He said, okay, well done. The only thing I have a request that we've taken it a bit too far now, because after
the Kargil operations, we are wanting things to stabilize. So I suggest we keep it on a low key. I said, perfectly fine, sir. Till he was alive, I never narrated this incident. But after that, I have narrated because it is my duty towards my soldiers who risked their life that their families should also come to know what their families have done, what their husbands have done. And all this has been achieved because my entire battalion was physically fit, mentally absolutely alert, emotionally very stable. So when we needed them, 100% resulted in success. There are other occasions also which I want to tell you. When I was commanding my division in Baramulla, so a lot of people do mention, and in the previous session also it was said that your ecosystem should also become stable. कश्मीर में क्या हो रहा था उस समय आपको याद है? 2013 के समय कश्मीर में पथराव होता था, साथ ही साथ पाकिस्तान पार से फायरिंग करती थी और इन्फिल्ट्रेशन टेररिस्ट करते थे। ये तीनों चीज़ें चल रही थी। इस समय हमारे जो जवान हैं उनके मन में क्या चल रहा है? मेरी माँ बीमार है, मेरे बेटे का एजुकेशन करना है, मुझे छुट्टी जाना है, मेरी बेटी की भी शादी मुझे करना है, लेकिन यहाँ पे फायरिंग चल रही है और मेरा यहाँ रहना भी ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वेयर दैट सेंस ऑफ डिसिप्लिन कम्स, वेर ही सेज मेरी चीज़ें शायद जो घर के प्रॉब्लम है मेरी वाइफ पूरी कर लेगी, मेरे पिताजी भी कर सकते हैं, शायद भाई भी करेंगे। यहाँ तक ठीक था। एक दिन 9 मराठास की एक बटालियन उरी सेक्टर में डिप्लॉयड थी और बहुत अच्छे काम कर रहे थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे। और मैं वहाँ पे गया जवानों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कल रात की फायरिंग में आपने पाकिस्तान की एक पूरी पोस्ट उड़ा दी, बहुत अच्छा, वेल डन। फिर उनके साथ बैठ के चाय पकोड़ा ये खाना, ये एक सोशलाइजिंग का पार्ट है लीडर के लिए, कमांडर के लिए। तो मैं उनसे जब बात कर रहा था तो मराठी में मैंने बात करना शुरू की। तो एक हवलदार से मैंने पूछा, बेटा कैसे हो? बोला, साहब ये दुश्मन वाला काम तो हमने कर लिया लेकिन घर का काम हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोला, साहब कल रात को जब मैं यहाँ पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग कर रहा था तो उसी समय मेरे गांव में पुलिस आई और मेरी माँ की काफ़ी पिटाई की। तो मैंने कहा ये तुम्हें कब पता लगा बेटा? बोला, सर जब फायरिंग करने से पहले ये पता लगा, लेकिन मैंने अपना ध्येय नहीं छोड़ा और आज आपने जब पूछा तो उस समय मुझे लगा कि किसी बड़े को मुझे बताना चाहिए, आप परिवार के बड़े हैं, तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे मेरा एक सवाल आप सबसे है, देश मेरा एक परिवार है, तो आप भी तो मुझे परिवार समझें, पुलिस भी तो मुझे परिवार समझे। जब उसको मालूम है कि ये सिपाही सरहद पे क्या काम कर रहा है तो उसकी माँ को इज्जत देने के बजाय बेइज्जती क्यों दी जाती है? दूसरा किस्सा, मेरी बटालियन अभी गलवान के एरिया में थी, सबको गलवान पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ? वेलनेस इन सोसाइटी इज एज इंपॉर्टेंट एज इंडिविजुअल वेलनेस। सबसे जूनियर ऑफिसर मेरी बटालियन का बेलगांव के पास का रहने वाला, कर्नाटक राज्य में, वो एक ऐसे पेट्रोल पे जा रहा था जो बहुत मुश्किल -45 डिग्री टेम्परेचर पे, और वहाँ पे उसको चिल ब्लेन्स हुए, फ्रॉस्ट बाइट हुई। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है आपकी उंगलियां काट दी जाएंगी। और वो अभी इवैक्यूएट हो रहा था तो रास्ते में उसको पता लगा कि कल रात को उसके परिवार में कुछ गुंडों ने हमला किया और पुलिस अब एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे फ़ोन आया, मैंने जो करना था वो किया, लेकिन सवाल फिर ये है, हम इंडिविजुअल वेलनेस पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे समाज के लिए जो वेलनेस की आवश्यकता है उसमें बहुत कमियां हैं। और जब तक आप अपनी कमी नहीं पहचानेंगे तब तक उसको ठीक कैसे करेंगे? मानसिक रोग को ठीक अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे ठीक चलेगा? अगर मेरे पास अथॉरिटी है तो मुझे उस अथॉरिटी का मिसयूज ना करते हुए उस अथॉरिटी का पॉजिटिव यूज करना चाहिए। हमारे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में
बहुत स्ट्रिक्ट हम होते हैं। ऑफिसर्स की बात करूंगा तो सबसे पहले एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होती है। उसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से सबको बुलाया जाता है और 7 दिन का पीरियड दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठा होता है या बैठी होती है और वो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर के कीड़ों को देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव हूँ, अगर मैं रैडिकल हूँ, अगर मैं क्रिमिनल माइंड का हूँ, तो मुझे इमीडिएटली वापस भेज दिया जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव हैं उनको अगले टेस्ट के लिए लिया जाता है। अगली टेस्ट क्या है? ग्रुप टेस्ट। मुझे 4 आदमियों की टीम दी जाती है और एक टास्क दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि अभी ये टास्क पूरा करके दिखाइए कैसे आप टीम को लीड करते हैं। आपका बर्ताव टीम के प्रति क्या है, टीम का बर्ताव आपके प्रति क्या है, ये लीडरशिप आइडेंटिफिकेशन है। अगर मैं एज ए लीडर अपनी टीम लीड कर सकता हूं, अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन में हूं, अगर मैं अपनी सेहत ठीक रख सकता हूं, तो मैं सिलेक्ट होऊंगा। वहाँ पे एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होती है और वहाँ पे उसके बाद मेडिकल टेस्ट होती है और मेडिकल टेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट होती है। कई लोग मेडिकल टेस्ट पे जाके वापस आ जाते हैं। ये मेरा कहना नहीं है कि जो लोग सिलेक्ट नहीं होते वो खराब हैं, पर जो फौज के लिए, जो सेना के लिए उपयुक्त रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलता है। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं, चाहे खड़कवासला जाएं, चाहे देहरादून जाएं, चाहे चेन्नई जाएं, और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमें बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फिजिकल फिटनेस है, डिसिप्लिन के लिए ड्रिल है, लीडरशिप के लिए क्लासेस हैं, एक्सरसाइजेज हैं। उस सब का परिणाम क्या होता है? उसका पॉजिटिव परिणाम होता है। उसके बाद जब हम अपनी यूनिट्स को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हमें कंपल्सरीली 35 दिन का एक कमांडो कोर्स करना पड़ता है। कमांडो कोर्स इतना स्ट्रिक्ट होता है कि हम लोग आपस में मजाक करते हैं कि ये भाई ये 35 दिन तो मेरे ज़िंदगी के गए, मुझे तो याद ही नहीं है कि इन 35 दिन में क्या हुआ। लेकिन ये आवश्यक है। और ये कमांडो कोर्स के बाद कुछ और कोर्सेज हैं जो और भी टफ हैं, जैसे विंटर वॉरफेयर या माउंटेन वॉरफेयर जो कश्मीर में होता है, जंगल वॉरफेयर जो मिज़ोरम में होता है। ये कंटिन्यूस ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है, बटालियंस के अंदर भी और ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर भी। पूरे का उद्देश्य एक ही है, फिजिकली आई हैव टू बी वेल, मेंटली आई हैव टू बी वेल, टीम वाइज आई हैव टू बी वेल। एंड जैसे ही ट्रिगर दबता है, सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, बालाकोट होती हैं और ऑपरेशन सिंदूर होता है। अगर आप अपनी सेना को हमेशा स्वस्थ नहीं रखेंगे तो ये होगा। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं, जैसे अगर हम लोग किसी पीस स्टेशन में हैं, जैसे पूना, अभी पुणे में पीस स्टेशन में एक ब्रिगेड है, लेकिन इनको बता दिया है कि भाई चलो सिंदूर 2.0 होने वाला है। उस समय कोई भी मेंटली परेशान भी अगर होगा तो वो अपने आप को स्थिर करता है और कहता है ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में, राष्ट्र सर्वोपरि। ये मेंटल हेल्थ का गुण है। क्या मैं इसको मानूं कि पूरे देश में ऐसी ही व्यवस्था है? नहीं है। जब सड़कों पे आंदोलन हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि बसेस जो हमारे टैक्स पेयर पैसे से बनी हैं, बिल्डिंग्स, और उसको आग लगाई जा रही है, हम आंदोलन देखते हैं जिसमें पथराव हो रहा है, तो आप ये सोचिए जो लोग वेलनेस में सबसे बेस्ट हैं, डिसिप्लिन में सबसे बेस्ट हैं, लीडरशिप में सबसे बेस्ट हैं, उनके मन में एक विचार तो निश्चित ही आता होगा कि क्या मैं अपनी लाइफ इन लोगों के लिए देने के लिए तैयार हूं? क्या ये डिजर्व करते हैं मेरी लाइफ? ये समाज को विचार करना आवश्यक है। क्या हम लोग सभी सिपाही नहीं हैं? क्या एक नागरिक सिपाही नहीं है? क्योंकि एक सिपाही तो नागरिक है, पर क्या नागरिक सिपाही नहीं हो सकता है? यहां पे मैं एक अगली चीज बताता हूं। जैसे जैसे हमारा राष्ट्र विकास कर रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि कई अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं।
मैं भी कई बार कहीं हॉस्पिटल जाता हूँ किसी को मिलने, और वहाँ पे डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं सर ये देखिए ये 5 करोड़ की मशीन हमारे हॉस्पिटल में है। बहुत अच्छी बात है। सर ये देखिए ये 10 करोड़ की मशीन है। सर हमारा हॉस्पिटल 50 करोड़ का है। बहुत अच्छी बात है, इतना होना चाहिए, विकसित होना चाहिए इसमें। लेकिन मेरा अगला प्रश्न उनको जब जाता है तो थोड़े डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उनको पूछता हूँ कि ये 50 करोड़ और 10 करोड़ की आवश्यकता कब पड़ी? हमने अपना डिसिप्लिन खोया, हमने अपनी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ की, और हम अब डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या कैंसर लेके यहाँ पहुँचे हैं। इसमें शायद एक व्यक्ति का खुद का रोल कम होगा, लेकिन इसमें समाज का रोल है। जब समाज के अंदर करप्शन आता है तो अडल्ट्रेशन आता है। जब समाज के अंदर ऐसा एक विचार आता है कि मैं लॉ के ऊपर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो जिसको हम मराठी में बोलते हैं भेसड़, आप पूरे समाज को बीमार कर रहे हैं। एक छोटा सा विचार, अभी ये जब लाल किले का किस्सा हुआ, सबने सुना है लाल किला में क्या हुआ? किसने नहीं सुना? बॉम्ब ब्लास्ट वाला सबने सुना है, हाँ या ना? हाँ। उसके साथ साथ आपको एक और खबर मिली होगी जिसमें ये पता लगा कि एक डॉक्टर है जिसने कैस्टर ऑयल या एरंडी का जो बोलते हैं उसके बीजों से एक राइसिन नाम का पॉइजन तैयार किया है। सुना है आपने? और ये भी सुना है कि पानी में थोड़ा सा मिला देने से जो भी वो पानी पिएगा मरेगा, जो खाने में मिलाएगा वो भी मरेगा। तो ये इसके लिए हमारे समाज में तैयारी है क्या? क्या हम लोग सभी देश की आंखें और देश के कान बने हैं क्या? देश के अंदर अगर डिसिप्लिन लाना है और देश का वेलनेस देखना है तो सामाजिक व्यवस्थाएं भी उसी तरह से होनी चाहिए कि जहां पे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है तो 2.8 बिलियन आंखें और कान भी होने चाहिए। तभी देश सुरक्षित रहेगा, तभी आप इंडिविजुअल सुरक्षित रहेंगे। मैं इजराइल गया था 2016 में, तो उस समय मेरी उनसे जो चर्चा चल रही थी वो किसी और विषय पे थी, लेकिन मुझे दक्षिण में एक वहाँ पे उनका एयरबेस देखने जाना था, इलाट नाम की जगह है। तो मैंने बोला मुझे टैक्सी कर दीजिए, मुझे आपकी गाड़ी में नहीं जाना है। तो उन्होंने मुझे टैक्सी दी, और टैक्सी का ड्राइवर उन्होंने बहुत सोच समझ के छांट के मेरे रिकॉर्ड को पूरी तरह से टेस्ट करके कि ये महाराष्ट्रियन है तो इसको मराठी बोलने वाला ड्राइवर देना चाहिए। इजराइल में सोचिए कितनी सोच विचार है देश की सुरक्षा के लिए। उसका नाम था योसी, वो शिवाजी पार्क दादर का रहने वाला था। पूरा परिवार उधर जा चुका है, लेकिन घर पे वो अभी भी मराठी में ही बात करते हैं, संस्कृति से जुड़े हैं अभी भी। और रास्ते में एक डेजर्ट लगता है, नेगेव डेजर्ट, तो उसमें मैं देख रहा था, वो गाड़ी चलाते हुए दाहिने बाएं देख रहा था। मैंने बोला योसी क्या देख रहे हो? उसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, आपसे साझा करना चाहता हूँ। उसने कहा कि सर मेरी ज़िंदगी मेरे देश के लिए है, मेरे राष्ट्र के लिए है, मेरी आँखें मेरे राष्ट्र के लिए हैं। अगर कोई चीज़ गलत है और मैं वो देख लेता हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन पास इमीडिएटली करना है। तो मैंने कहा कैसे करेंगे? तो उसका जो सनशेड होता है उसने नीचे किया, उस पर नंबर क्लियर लिखा हुआ था कि उसने अगर कोई चीज़ देखी वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। इसका अर्थ क्या है? उस देश ने ये सोच रखा है हर एक इंडिविजुअल फिजिकली फिट होगा। आप जाइए तेल अवीव में या कहीं पे भी जाइए, सुबह सुबह पूरा शहर बाहर होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है। समाज डिसिप्लिन्ड है, उन्होंने अपनी एटीट्यूड क्लियर बना रखी है कि हम देश के लिए हैं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, लेकिन हम लड़ेंगे और विजयी होंगे, फिजिकली भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन भी, और प्रोसेसेस और पॉलिसीज बनाई हुई हैं उनके गवर्नमेंट ने, ताकि हर एक नागरिक अपने आप को उस देश का सिपाही समझे और देश के वेलनेस के लिए सोचे। तो मैंने इंडिविजुअल वेलनेस, डिसिप्लिन और लीडरशिप के बारे में आपको बताया, समाज के बारे में भी बताया, दूसरे देशों के बारे में भी बताया, और हमारे यहाँ पे जो खामियां हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने से हिचकिचा नहीं हूँ।
कुछ एग्जाम्पल्स और। 1988 में मैं सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात हुआ। 1984 में हमने सियाचिन ग्लेशियर पे सबसे पहले हमारी 4 कुमाऊं, और उसमें कैप्टन संजय कुलकर्णी थे जो सबसे पहले सियाचिन पे उतरे, और डिप्लॉय हम हुए। -45 डिग्रीज टेम्परेचर, 18,000 फीट के ऊपर का एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन नहीं है, एक पेड़ भी नहीं है वहाँ पे, घास का पत्ता भी नहीं है, पूरा बर्फ, और उस बर्फ को पिघला के हमने पानी पीना है। ये ऐसी परिस्थिति में हम लोग जब वहाँ थे तो लगातार 1986, 87, 88 तीनों साल कंटिन्यूस हमारे ऊपर पाकिस्तान से हमले हुए। उनके जो कमांडोज थे उनको एसएसजी कहा जाता है। उनके एसएसजी के जो कमांडर थे उस समय ब्रिगेडियर परवेज़ मुशर्रफ थे, और परवेज़ मुशर्रफ बाद में जब चीफ बने, और ये एक लीडरशिप उनके हिसाब से पॉजिटिव लीडरशिप होगी, हमारे हिसाब से नेगेटिव है, लेकिन वो 3 साल की लगातार हार उनको हजम नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने कारगिल के ऊपर हमला किया। हमने जब कारगिल के हमले का जवाब देने की तैयारी की तो उस समय हमारे पास जो भी रिस्ट्रिक्शंस रहे होंगे, क्योंकि जब सरकार कोई आदेश देती है तो सेना पालन करती है, हमें ये बोला गया कि आप सीमा पार नहीं करेंगे, लेकिन अपने ही इलाके से आप हमले करेंगे, आप कोई दूसरा क्षेत्र नहीं खोलेंगे। नॉर्मली मिलिट्री प्लान में ये होता कि हम उनको पीछे से हमला करते। नॉर्मली मिलिट्री प्लान में ये होता कि अगर ये कारगिल में ऑपरेशन चल रहा है तो नौशेरा को एक्टिवेट करो। हमारे भी जो लीडर्स थे, हमारे भी जो कमांडर्स थे, बढ़िया कमांडर्स थे, जनरल वेद मलिक कमांडर थे हमारे, चीफ सेना अध्यक्ष, हम नौशेरा में थे, उन्होंने बोला नौशेरा एक्टिवेट करो, हमने एक्टिवेट किया। हर एक चीज़ आपको जो अखबार में दिखाई जाती वो सच नहीं होती, और हमने वो एक्टिवेट किया। इसकी वजह से हम कारगिल की चोटियां दोबारा ले पाए। और सिर्फ एक दुख होता है कि अगर इतनी हमारे ऊपर सीमाएं नहीं बांध दी जाती, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर था, तो शायद हमारे जो 500 प्लस सैनिक शहीद हुए, सैनिक का मतलब उसमें अफसर भी हैं, शायद हम उसको बहुत कम कर पाते। लेकिन पॉइंट यह है, लीडर ने आपको अगर बोला है तो वो अनुशासन के तौर पे आपको मानना पड़ेगा, भले ही आपकी जान उसमें जाए, लेकिन आपको वो मानना पड़ेगा। ये देश की और सेना की एक इथोस है, एक प्रथा है। जब हम किसी भी ऑपरेशन में जाते हैं तो मान लीजिए मैं अपनी एक टोली लेके गया, अगर मैं कैप्टन हूँ तो मेरे पास 30 लोग हैं, मैं अगर मेजर हूँ तो मेरे पास 150 लोग हैं, मैं अगर कर्नल हूँ तो मेरे पास 850 से 1000 लोग हैं। हम उस ऑपरेशन में जाके जब वापस आते हैं सभी, तो लीडरशिप के तौर पे सबसे पहले जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है वो हर एक जवान को चेक करता है, आप ठीक हैं, आपको चोट तो नहीं लगी है, लगी है तो क्या हुआ है, आप 50 किलोमीटर चल के आए हैं बगैर रुके हुए, आपके पाँव में छाले हैं या चोट लगी है, ये पूरा चेक किया जाता है। हर एक जवान को गरम चाय दी जाती है, लास्ट में चाय वहाँ का लीडर जो कमांडर है वो लास्ट में लेता है। ये लीडरशिप होती है। ये लीडरशिप नहीं होता है कि कॉरपोरेटर बनते से ही करोड़पति बन जाओ। समाज में अगर अव्यवस्था है तो वो लैक ऑफ डिसिप्लिन और लैक ऑफ लीडरशिप से है। हमारे कोई भी सेनाध्यक्ष 3 बेडरूम फ्लैट से बड़े घर में नहीं हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पाकिस्तान का कोई सेनाध्यक्ष रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में नहीं रुकता है। वो इंग्लैंड में रहता है बंगले में, वो यूएसए में रहता है विला में, या दुबई में रहता है विला में। हमारा डिसिप्लिन उनके डिसिप्लिन में ये फ़र्क है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लीडरशिप। आपको आमतौर पे हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स बिल्कुल ठीक ठाक हालत में दिखेंगे। अगर मैंने आपको बताया कि हमारी एक फायरमैन लिफ्ट वाली हमेशा टेस्ट होती है, हर रोज़ होती है, उसकी वजह से हर एक व्यक्ति को पता है कि मुझे अपना वज़न कम रखना है। अगर मैं अपना वज़न कम नहीं रखूँगा
तो जब मुझे गोली लगेगी तो मुझे कोई उठा के नहीं ले जा पाएगा, मैं वहीं मरूंगा या पीडब्ल्यू बनूंगा। और वो बड़ी को भी ये लगता है कि अरे यार ये वजन इसका बढ़ रहा है, वो बोलेगा आपको, आपके मुंह पे बोलेगा वजन कम करो, मैं नहीं उठाने वाला इतना वजन। मैं जब एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे आज जाता हूँ और जितने ओवरवेट युवा वर्ग मुझे दिखते हैं तो मुझे अपने देश का भविष्य कुछ अच्छा नहीं लगता। चाहे आप पैकेज्ड फूड खाएं, चाहे आप फास्ट फूड खाएं, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी जेब के अंदर जितनी ताकत है, लेकिन बुद्धि आपकी है, शरीर आपका है। चाहे आपको कोई मुफ्त में भी खिलाए, लेकिन शरीर आपका है, बुद्धि आपकी है। अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आम तौर पे जब हम अभी देखते हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को बीमारियां हो रही हैं, तो बीमार व्यक्ति, बीमार देश, बीमार समाज। फिर आपको 2047 में अगर आप डेवलप भी हो गए तो उसका मज़ा आप नहीं ले पाएंगे। तो कुछ चीज़ें आवश्यक थी जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, और उसमें आपका वेलनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, टीम डिसिप्लिन, यूनिट डिसिप्लिन, समाज का डिसिप्लिन, राष्ट्र का डिसिप्लिन, और उसके लिए लीडरशिप। तो मुझे लगा कि इन चीज़ों को मैं आपको बताऊं। तो मुझे जो 45 मिनट दिए गए थे उसमें से काफ़ी कुछ ख़त्म हो गए हैं। बाकी अगर किसी को सवाल जवाब हैं तो मैं सवाल जवाब ले सकता हूं, और कोई भी चीज़ आपको पूछनी है बेझिझक आप पूछिए। मेरे ख्याल से माइक की व्यवस्था होगी यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और जो लोग यहाँ से बाहर गए वो नहीं सुन पाए, वो उनका नुकसान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, sir. Sir, you can take a seat. Any questions? We can have our volunteers will be around with the mics. तो किसी को कोई भी सवाल है about leadership, about discipline, about way of life in the army, या पीछे, can we hand over a mic there? Please अपना नाम बोलिए and your question, please. Hello, sir. My name is Dhanraj Thakre. My question is like, how can we incorporate such qualities such as physically fit, emotionally stable, and discipline, and being organized as an individual? भगवत गीता सुना है? भगवत गीता नाम के ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ या ना? Yes, sir. हमारा ही है, विदेश का नहीं है। उसको पढ़ने से ज़्यादा उसको इनकॉर्पोरेट करना है। हम लोग उससे इंस्पायर्ड होते हैं। हमारे यहाँ पे सप्ताह में एक दिन हमारे यहाँ पे एक सर्वधर्म स्थल होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब चारों एक जगह होता है, और वहाँ पे हर हफ्ते हमारी पूरी टीम और जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पे होते हैं, और हमारे एक क्वालिफाइड व्यक्ति होते हैं, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे वो मौलवी हों, चाहे ग्रंथी हों, चाहे पास्टर हों, वो हमें वहाँ पे ज्ञान देते हैं। उसमें भगवत गीता का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आपको एक चीज़ एकदम क्लियरली बताई गई है कि आप विक्ट्री में इतने ज़्यादा भी खुश मत हो जाइए कि बैलेंस छोड़ दें, या डिफीट में इतने ज़्यादा डिप्रेस ना हो जाएं कि आप सुसाइड की सोचें। ये जो आप बॉलीवुड में देखते हैं ना कि भांगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम बहुत सोच समझ के काम करते हैं, सोच समझ के वापस आते हैं। अभी आपका जो प्रश्न है, फिजिकली आपको फिट रहना है, ये एक आप मान लीजिए आपके लिए अनिवार्य है, आपके लिए ये ऑप्शनल नहीं है। आपको अपने परिवार की भी जवाबदारी निभानी है, आपको राष्ट्र की भी जवाबदारी निभानी है। मेंटली स्टेबल होने के लिए कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने, फोर फादर्स ने हमारे लिए छोड़ी हैं। उसको पढ़ना है, उसको फॉलो करना है। केवल पढ़ना नहीं है, उसको फॉलो करना है, आत्मसात करना है, अपने ज़िंदगी में लाना है, और ये हम सब करते हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे नॉर्मली मिलिट्री ऑफिसर्स आप देखेंगे या जवान भी देखेंगे, फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली इमोशनली भी स्टेबल होते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में कम सोचते हैं। ये मैं एक अच्छे अधिकारी और सिपाही के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें, अगर दूसरों को देख के आप सीख सकें तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं।
Thank you. Yeah, Thank can you, we have sir. the mic here, please? आगे यहाँ पर, आगे की तरफ. आपका नाम and then the question, please. हाँ, मैं भरत देशपांडे। एक ऐसा ये था दिल में कि जब वो बॉर्डर पे वॉर चलता है और जो भी टीम वो चला रही है तो उनके कोई ऐसे फिक्स आवर्स के बाद दूसरी टीम आती है या इनको ही वो 2 या 4 दिन कंटिन्यू करना पड़ता है? दोबारा जरा बताएं क्योंकि थोड़ा माइक से आपकी आवाज़ फट गई. बॉर्डर पे जब वॉर चलती है तो इज इट द सेम टीम दैट ओके. is part of the war या फिर there's another team replacing, like shift kind of thing होता है क्या इसमें? ये इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ शिफ्ट नहीं चलती. No, I'm not asking in that sense whether that team has to continue for 3 or 4 days or somebody else comes and withdraws. There is only one mission. I have to succeed, and I will continue till I succeed. Okay. That is the feeling amongst all of us. Okay. If I am overwhelmed in a manner that we are only 10 people and there are 30 people from the other side, I will get reinforcements. But I will not come back. I will not come back till my mission is complete. If I suddenly find that even 30 people are less, so another 80 people will come. But the core group which started the contact will not retreat. Okay. Okay. That is why when we go for commandos, there are 5 days exercises when we are not allowed to sleep. We are continuously on the move. We don't even have food to eat. When we do our commando jumps, which is from a very high position, you have to dive into a tank, you have to climb a ladder with wet clothes, wet shoes. Then you have to walk across 50 meters with wet shoes, and the wind is pushing you off that narrow strip of width, maybe 8 inches or 12 inches. What is all this? This is preparing us for the future, that you will never give up whatever it is, whether it is the enemy, whether it is the climate, whether it is your own deficiencies, but you are not going to give up. So that is the reason when you see around, you will not find military people who go to the gyms. Not the way the current youth goes. You're not looking at muscular people. You're looking at people who from within are made of iron and steel. Thank you, sir, very much. Yeah, can we have it here, please? As it said, the more you sweat in training, the less you bleed in combat. Absolutely. So the kind of training that they go through is something probably we cannot even imagine. Yes, aapka naam and the question, please. On it? It's on. Good afternoon, sir. My name is Ram Bhege. Sir, my question, I have 2 questions, but first to start. Like in other countries, I have read that there are 2 years, 1 year compulsory training, army training has to go with the youth. So why this is not implemented in our country? That's one question. And my second question is, why most of the time or sometime a bad leader, unhealthy or not mentally stable leader lead the country than rather a stable, healthy and a very mind sharp army person not leading the country? The second question I'll answer first. Please say. Don't elect such a person. And if he is mentally zero or mentally retarded, why do you vote for him? The second part, why not an army leading it? I will answer it very simply. I think in South Asia, India is the only country where we have not had a single military coup till date, because we all respect the constitution. A few of our retired officers have joined politics. Now, why haven't they been successful? Maybe they find themselves at sea because politics is not a place which is for disciplined people. True, sir. The first part of your question, very interesting, about compulsory military service. So there are countries where conscription is compulsory. Say Israel has 3 years
for males, 2 years for females, or 2.5 years for girls. Korea has compulsory military service for males. For girls, it is optional. Russia also has the same thing. China has also got the same thing. UK and USA have tried to act smart. They have removed the compulsory military service, but they have thrown that dana. Ki anybody who wants citizenship here, please come join us, go and serve in Afghanistan. Do 2 tenures and you will be given a green card. But this is how exactly it happens. Abhi, recently when President Putin visited us till yesterday or day before yesterday, you know, one of the points discussed with him was people from India have been taken by contractors as labor and quickly manipulated and pushed them into the Russian army. Very few, but this is how things get manipulated. They had gone there to earn a living, but somebody pushed them. Same happens with the Nepalese citizens also. But coming back to the conscription part, mentally quickly do a calculation of 1.4 billion ka youth, 60%. Can I afford to keep them in military? Or can I find a different solution? I think what is important is to find a different solution, and instead of saying that it will be compulsory military service, why can't we call it compulsory national service, whether it is for security, whether it is for development. Recently, I was in Hyderabad interacting with some different segment of society, and one of the sannyasis, Swamiji, very learned person, he told me, he said, General Sahab, what we need to think is, 12वीं के बाद 1 साल कंपलसरी बच्चे को यहाँ लेना चाहिए ताकि उसको पता तो चले कि असली दुनिया उसके पिताजी की गाड़ी के और बंगले के बाहर है. Very good thought, 1 year. And then Swamiji went on to say कि ग्रेजुएशन के बाद, स्पेशली इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के ग्रेजुएशन के बाद 2 साल राष्ट्र सेवा में लाना चाहिए. और ये भी इसलिए कि आप सरकारी खर्चे के ऊपर इंजीनियर बनते हैं और उसके बाद सिलिकॉन वैली चले जाते हैं और फिर वहाँ से हमारे देश की क्रिटिसिज्म करते हैं. तो ये एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि हाँ, ये एक वर्केबल है. और क्या अचीव होगा? कम से कम ये तो अचीव हो जाएगा हमारे पास. आप उस यूथ को छोड़ेंगे, हम उसको फिजिकली तो फिट कर ही देंगे. सुबह सुबह हम 4 बजे उठा के दौड़ाने तो उसको ले ही जाएंगे. उसको खाना वही खिलाएंगे जिससे हम फिजिकली फिट हैं. ये डोमिनोज और बर्गर्स और ये सब तो नहीं आने देंगे उसके पास. तो ये ज़रूर होगा कि देश में एक फिजिकल हेल्थ शायद ठीक हो जाए और टीम स्पिरिट ठीक हो जाए, राष्ट्र के प्रति जो समर्पित होने वाली भावना है वो ठीक हो जाए. लेकिन इनको सबको सेना में ही रखना ये शायद सही नहीं होगा. आप ही खुद सोचिए कि सेना तो अच्छा काम कर रही है ना, आप सभी मानते हैं. तो जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको भी तो ठीक करे. तो अगर आपको लगता है कि राज्य में प्रशासन और लॉ एनफोर्समेंट, तो क्या पुलिस को भी ठीक करना आवश्यक नहीं है या नहीं है? तो वहाँ पे भी तो कुछ करना चाहिए ना हमको. हाँ, ये जरूर डर है कि उनको वहाँ भेजे तो पैसे खाना सीख जाएंगे. लेकिन आवश्यकता है राष्ट्र सेवा की. मैं भी आपकी बात मानता हूँ. और अगली बार जब आप वोट दें तो पॉलिटिकल पार्टी को एजेंडा मैनिफेस्टो जरूर पूछिए कि राष्ट्र सेवा के लिए आपका क्या प्लान है. Thank you very much. We have time for one last question. Either can we have the mic here, please? आगे first front row में. Sir, Mani Tamane, can you highlight in brief about Operation Sindoor? Operation Sindoor cannot be in brief, but I can highlight a few things. And I want to just tell you the background to Operation Sindoor does not start on 22nd April alone. Pakistan, as your neighbor, has always been a trouble for you right from 1947. So it is something like, for them, breaking India is the only passion. To break India, they have to do everything possible, whether it is religion, whether it is caste, whether it is backwardness, but they have to use that, and it is not only from outside that it is happening, it is even from inside, and that is where
General Rawat, our first CDS, used to say 2.5 front war which India faces, and that 0.5 is the internal part. So Operation Sindoor, as it continues, that 0.5 also continues. So that is where you see so much of internal chaos. People who are Pakistani citizens have been living here for 40 years. They've got voter ID, they've got Aadhaar card, they've got children. Do you know Hizbul Mujahideen chief Sayyid Salahuddin? His 2 sons were employed in J&K government state jobs, government jobs. And when I mentioned General Rawat, just to remind you, tomorrow is 8 December, that is the day when he died. We should never forget our heroes. And Operation Sindoor has created many heroes. Operation Sindoor was the first high technology war in which our fighter aircrafts did not go across. Our soldiers did not cross but delivered disastrous results for Pakistani terrorists and their military. And what was the impact when on the night of 6/7 we attacked their terrorist headquarters at Murid ke Bahawalpur, Muzaffarabad, Sialkot and such areas, Gulpur. We did not kill a single civilian, and that is the reason we went at night. We did not go at that namaz time. And what was their result? They attacked our civilians at Uri, Punch, Rajouri. Rajouri assistant district collector got killed in that. What had he got to do with war? Jammu, Badmer, all these areas, they sent drones to kill our civilians. They attacked a Gurdwara, they attacked a church. They sent missiles to attack Delhi. It didn't succeed is because of our good air defense. And then we said, okay, all these areas from where they are using these drones and missiles are their military bases, the aviation bases. So 11 such bases were attacked and destroyed. And we gave them evidence from satellite imagery which was not ours. If we had given our satellite imagery, immediately on our television shows we would have said, we would have been told, अरे ये तो कोई evidence नहीं, ये तो manipulated है, जैसे surgical strikes और बालाकोट के time पे हुआ था. The worst phase of a soldier's life is when your own society, your own nation starts questioning your integrity and loyalty. And that is why we purchased high resolution satellite imagery from an American company called Maxar. You can buy that imagery even today. And we gave that imagery in public. Till date, has Pakistan given even a single imagery to show what has happened to our Rafales or what has happened to our air bases? Not a single one. And when Prime Minister says that Operation Sindoor continues, so it does not restrict itself to the Air Force or the Army. It goes beyond to non-kinetic domain, जिसमें Indus Water Treaty is another important part. Water will be weaponized if Pakistan continues to weaponize its human population. So you have to deal with your enemy not with a civilized thought process, but with that thought process which our civilization has taught us, which is शत्रु बोध होना आवश्यक है. आप सभ्य व्यक्ति से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप गुंडे मवाली से लड़ाई कर रहे हैं, और गुंडा मवाली शक्ति की भाषा ही सीखता है. And that is Sindoor, which continues. All right, one short question. We have time for one very last question. Can we have the mic here, please? Namaste, sir. Your session has been awesome. And my name is CS Dr. Chetan Gandhi. I'm a leadership and life transformation expert. My only question is that how can we civilians serve the defense people from all sides? Please serve the nation. And all of us can serve the nation in many ways. Now the new wars which are prevalent today, one is the information war. Second is the cyber war. Third is the biological and chemical war. Space war, in which we don't expect much from citizens. But citizens can also do a lot for us
by controlling misinformation and destroying disinformation. What is the difference between these two? Let us say I sent a message to the first person here and we say, okay, get me the message after passing it through everyone. Unintentional change of the content is called misinformation. But deliberate change of the information is disinformation. That is to divide our society, to show that कुछ हुआ लेकिन बताया नहीं गया. That is disinformation. So please control that. What is the problem? All of us are carrying smartphone. हर एक की जेब में या पर्स में है. ये चेंज का हथियार है. या तो आप देश की सेवा में इसको इस्तेमाल कीजिए या देश के सुसाइड में इसका इस्तेमाल कीजिए. You have to decide on which side you are. If you are going to pass and circulate bad messages, then you are a part of that 0.5 front which General Rawat used to describe. So you can help in that. The second thing you can do definitely is being good in cyber defense. If your device gets compromised, and hundreds and thousands and lakhs of devices get compromised, the national data leaks. Start using your domestic, internal, Deshi, Swadeshi platforms. You've heard of Sridhar Vembu? Yes. He's made an alternative to WhatsApp. Yes. How many of us are using? Please raise your hand. Numbers can be more. All of us use Google Maps. Have you heard of Map My India? How many are using Map My India? Look at it. What can we do? At least use our own products. If you use your own products, other countries will start using it. Your data will not go out. Today, our data goes out through WhatsApp, Facebook, Instagram. Sentiment analysis is done through big data analytics in other countries. And narratives are floated here to divide us. When will we understand that? Biological and chemical, I told you, be careful of who's around you and using which particular storehouse to do something nasty. Look at the chemicals. From 5 trillion, we have to become a 35 trillion economy. That will happen only when manufacturing increases, so industries will increase. See what happened in Bhopal with Union Carbide. We have to be cautious as to how to know how to respond for chemical attacks. NIA and Maharashtra Police have taken lead in training their people, at least at the DSP level, on how to respond to chemical attacks. Has that happened among the citizens? No, it hasn't. Has it happened amongst big hospitals? No, it has not happened. Are we waiting for everything to be told by the government? Obviously, there's something wrong in our thinking. We feel we are comfortable whether we are sitting in Nagpur, Pondicherry, Bangalore, Coimbatore or Pune. In today's war, you're not even safe if you're sitting in Port Blair. So better look at your own defense, and that is where civil defense comes up. You've all heard of the term mock drill? Mock drill stopped the moment we succeeded in Operation Sindoor. Mock drill never stops. For 3 years, I was in Africa in a country called Lesotho. My son, who was studying there, every week used to have an emergency drill conducted in the school. How often do we do it? How often do we do it in our own residential complexes? I think there is so much that a citizen can do, provided he thinks he's a soldier of the nation. Thank you, sir. Thank you so much. A round of applause, everybody, for Khandare sir for answering those questions so well and for that lovely session. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ. सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.